सिनेरियो तो नहीं है। सिनेरियो नहीं है। नहीं। ओके। सर फिर बैठ मैं जाए। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, देन विल स्टार्ट। सर। You are working consultant gynecologist in an outpatient clinic in a tertiary care hospital where you meet a 32-year-old lady who has presented to you with 6 months history of severe mood swings, anxiety, irritability, fatigue, bloating, and breast tenderness occurring 7 to 10 days before her periods and resolving within a few days after menstruation. She reports that these symptoms are affecting her work performance and relationship. She has a regular 28-day cycle and her symptoms do not occur throughout the month. She has no history of major depressive disorder or anxiety but has tried over the counter supplements without relief. The examiner will have a discussion with you based on 7 questions. You have 10 minutes in which you have to answer the questions asked by the examiner. ओके So, सर। shall we start? ओके सर। ओके सर, आई एम रेडी फॉर द स्ट्रक्चर डिस्कशन। Okay, good. How would you approach the diagnosis of PMS in this patient? Okay, sir. First of all, I will tell the patient to maintain the pain diary or the symptoms diary for at least 2 cycles. Okay. If if I cannot reach the diagnosis, so I will start the GnRH analog for at least 3 months to make the final diagnosis. Mm. Okay, ठीक. What differential diagnosis should be considered in this patient? There should first of all premenstrual syndrome, and Mm-hmm. then there is endometriosis, and there's a chronic pelvic pain, we can say that, and mm, Okay. any depressive disorder, Like, uh, like सर कोई भी ऐसी कोई डिप्रेशन, what do you mean by acid depression? for example, for example, in patient with epilepsy or asthma, so might be. Yeah. What investigation, if any, would you request for these kind of patients? No, as such particular investigation, just I will not like to do this pain diary or symptom diary, or an ultrasound maybe if needed Why would you want to have an ultrasound? to check any cyst maybe, but it's not needed. I will not at such investigation needed, but I only pain diary, Pain diary. Okay. pain or symptom diary. How would you manage this patient's symptoms now? Okay. So first of all, I will counsel my patient very empathetically that she is having a premenstrual syndrome. I will give her the different treatment option. First is lifestyle modification to give diet, exercise, some complement therapies like vitamin B6, calcium, and if the patient has some breast tenderness, so I will give her the primitive oil. And then are the non-hormonal treatment and the hormonal treatment. In the non-hormonal treatment, I will first line is the low dose SSRIs, and then hormonal we give the continuous combined dospirinon COCP if patient does not want to conceive. And the third option will be the GnRH. Third line is the uh, high dose. Second line is also high dose SSRIs, and third line is the GnRH analog. And also we give the some diuretics to reduce her the physical symptoms, and some and we also give the danazole tablet, danazole for the breast tenderness, but it has some side effects,
And if the all treatment does not work, so in the end I will give the surgical option last to remove the uterus plus ovaries. And in the end I will, if the patient opt the surgical treatment, so I will give also HRT after removing the uterus and ovaries, estrogen only HRT. What is the role of SSRIs in PMS and how would they be prescribed? Okay. So SSRIs only reduce her the symptoms, like menstrual related symptoms, and we can prescribe with the like general practitioner, uh, and it will cause some headache, insomnia, loss of libido, and she should not stop suddenly. She should stop gradually with the help of their uh, consultant. नहीं बेटा, but then how are you prescribing it? How will you prescribe this SSRI to the patient? उसको सर मैं उसको लो डोज SSRIs दूंगी, जिसे हम सिट्रालोप्राम कहते हैं, 10 mg, और ये हमारे ये PMS के सिम्टम्स को कम करेगा। और उसको हम बोलेंगे कि आप खुद से बंद नहीं कर सी, इफ यू वांट टू कंसीव तो आपको ये ग्रेजुअली बंद करना होगा, क्योंकि इससे आपको हेडेक हो सकता है। Any other way of prescribing this medication? Okay. When should hormonal therapy be considered and what are the options? um there if there is a low dose SSRI is not work, then we will go for the hormonal treatment. It's just like combined oral progesterone pill, dose containing, and the option will be the estradiol gel or patch. Mm-hmm. And also we can consider the Mirena, and third will be the Danazol, and the fourth will be the GnRH analog. Okay. How would you counsel this patient regarding her prognosis and follow-up? uh, Prognosis and follow. um Sir, after the treatment या मतलब उसको after treatment? बेटा अभी आपको तो you've been given the scenario पहले, so अब उसी का question है. Do you want me to repeat the scenario? Yes, sir. Please. Okay. You are working as a consultant gynecologist in an outpatient clinic in a tertiary care hospital where you meet a 32-year-old lady who has presented to you with the 6 months history of severe mood swings, anxiety, irritability, fatigue, bloating, and breast tenderness occurring 7 to 10 days before her periods and resolving within a few days after menstruation. अब उसी का आगे क्वेश्चन है, हाउ वुड यू काउंसिल दिस पेशेंट रिगार्डिंग हर प्रोग्नोसिस एंड फॉलो अप? सर इसमें मैं यही बताऊंगी कि आपने सबसे पहले वो पेन डायरी को मेंटेन करना है। अगर सिम्टम्स आपने उस एटलीस्ट 2 साइकिल्स, उसके बाद फिर अगर सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते, फिर हम इसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स थेरेपीज देंगे, डाइट, एक्सरसाइज, देन वी विल गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके. आपको हर साइकिल आप आना होगा, लाइक हर विजिट पे डिपेंड। Okay. All right. चलो, वी आर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, हमारे 30 सेकेंड्स रह गए. आप इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, बेटा किस ईयर में हो अभी? क्या आपने एग्जाम दिया है अभी पहले? जी सर, मैंने दिया एग्जाम।
ओके। और आपका क्या ख्याल है कि ये वाला स्टेशन आपका कैसा हुआ? सर मेरा अच्छा हुआ है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चंस है उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। बाकी तो मेरा अच्छा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर तो दिया है। और आपका ख्याल है कि आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर ठीक दिया? सर नहीं, आपके हिसाब से ठीक भी हो सकता है, उसमें तो कोई गलत बात तो नहीं ना। मैं तो सिर्फ आपकी एक रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। सर मैंने सर आंसर तो मैंने सही अगर दिया है। ये मरीज आपके पास आता, लेट्स सपोज मैं इस तरह इसको पुट इन करता हूँ, ये था सपोज, इस तरह का पेशेंट अगर आपका आता तो वो आपका ख्याल है कि वुड हैव गॉन होम सेटिस्फाइड, और आपका ख्याल है ये ट्रीटमेंट हो जाती है इसकी? सर इसको तो मैं ये जैसे हाई डोज, इसको मैं SSRI आईज या मैं इसको लाइक कंबाइन और पिल्स पे रखती है, क्योंकि हाई इसको सीवियर सिम्टम्स है। ठीक है। और इसको साथ साथ मैं इसको डाइट और एक्सरसाइज तो बताती, वो तो साथ साथ चलता है। ठीक। और और जब इसको हम, फिर इसको मैं फॉलो पे जी, अगर फॉलो पे बुलाती है, इसका फिर सिम्टम्स नहीं हल होते, फिर मैं इसको GnRH एनालॉग देती विद काउंसिल करती कि इसको भाई टेम्परेरी मैं मेनोपॉज कर दूंगी, देन एंड में सर्जरी, अच्छा, ये जो अगर सारी वो सॉरी, फर्टिलिटी विश। ठीक, ओके। ये जो सारी मेडिसिन आप बताती हैं, ये इसको ये होता क्यों है प्रॉब्लम पेशेंट को? मैं उसको ये मैं बताती दे रहे, वैसे तो कॉज अननोन है। दो थ्योरीज हैं, ठीक है ना। कुछ हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है, हम्म। ओवरीज से। लेकिन वो तो नॉर्मल लेवल पर होते हैं, पर हमारी कुछ वुमेन्स होती हैं ऐसी 2 to 4% जिसमें ये सेंसिटिव होती है प्रोजेस्टेरॉन से, तो ये वजह से आपको होता है। और 5 to 8% जो होता है ये सिवियरिटी के साथ होता है। और दूसरी थ्योरी ऐसी है कि हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं न्यूरो, सीरोटोनिन और वो गाबा, जिसकी वजह से भी ये होता है। ये दो थ्योरीज मैं उसको फिर बताती ओके। हूँ। और जो ये आपने सारी मेडिकेशंस दी हैं, हाउ डू दे वर्क? क्या आप मतलब हाउ डू दे? जो आपने उनको ट्रीटमेंट प्लान के लिए दिया, हम्म। आपने एसएसआरआईज दी है, आपने कॉन्सेप्टिव पिल दिया, आपने डानाजोल दिया, आपने जीएनआरएच दिया, हाउ डू दे वर्क? ओके सर, COCP से तो ये होगा कि आपको वो उस पे हम्म। ओवुलेशन नहीं होगी, ठीक है ना। एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी होगा, जब ओवुलेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। माइना भी दे सकते हैं। और GnRH एनालॉग से ये होता है कि वो टेम्परेरी। आपका ख्याल है, एक 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 बेटा सुन, डू यू थिंक मारीना जो है वो ओवुलेशन को रोकती है? नहीं, मायरीना नहीं। सी- तो मायरीना फिर तो एज अ हाउ विल मारीना वर्क देन? आपने, क्योंकि इसमें मारीना में लिखा हुआ है, आपने कहा है हाउ विल मारीना देन वर्क। ईस्टोराल पैच के साथ हम दे सकते हैं मायरीना, के शायद। इस बार का पैच भी लगा दोगे और फिर उसके बाद साथ मारीना भी दे दोगे? नहीं, मायरीना से उसमें वो ओवुलेशन का वो नहीं है उसमें रोल, ठीक है। मैं इसको COCPs दे दूंगी ना, COCPs भी तो है ऑप्शन। नहीं, मारीना आपने भी दी है बेटा, अभी आप ही ने मुझे कहा है। ये वो सर वो काउंटरएक्ट करेगा एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स को तो। ओके। कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है जो ये सारी चीजें कर सकता है? और मेडिकल डिसऑर्डर सर एपिलेप्सी में आई थिंक, या एपिलेप्सी में किस तरह होगा बेटा? एपिलेप्सी में तो उसकी पर या तो ये तो नहीं कि एपिलेप्सी आप उसको एट द अभी स्टार्ट होगी एट द एज ऑफ 32, शी इज अ 32 years old पेशेंट।
सर माइग्रेन में या माइग्रेन में भी ऐसा हो सकता है। हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है ऐसी चीज सिम्टम्स कॉज आपको, या प्रोलैक्टिन का हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कॉज कर सकता है ये सारी चीजें। सर हाइपोप्रोलैक्टीमिया में हो सकता है कि उसको जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस और फैटिक वगैरह हो तो सिम्टम्स इसके बिल्कुल। पेरीमेनोपॉजल टाइम हो जाए जब होता है तो कई बार कैन ऑल दीज कैन हम्म, कॉज सिम्टम्स लाइक दिस। जी। तो जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या डू वी डू ऑल दोस थायराइड फंक्शन टेस्ट, प्रोलैक्टिन लेवल्स, एफएसएच लेवल्स, डू वी रिक्वायर टू हैव देम डन? हम्म। जी नहीं, ये सर कर सकते हैं। मुंह को यस समझूं, नो समझूं, क्या समझूं? सर बात आप ठीक कर रहे हैं लेकिन 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 हमने करवाना नहीं है। सर अगर मतलब वही हिस्ट्री पूरी लेंगे प्रॉपर तो इस वजह से अगर उसके थायराइड के सिम्टम्स हुए तो मैं आप, क्योंकि कराऊंगी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि व्हाट इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड आप इस पेशेंट्स में करोगे। सर अगर हिस्ट्री। क्या साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन इसकी होनी चाहिए बिहेवियर साइंस डॉक्टर से? जी सर मेंटल वो। अच्छा, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपने सिर्फ एंजाइटी का, इज एंजाइटी ओनली ऑप्शन कि कोई और भी साइकोलॉजिकल डिजीज हो सकती है? सर एंजाइटी या कुछ डिप्रेशन हो सकता है। एक होता है पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सर डिसऑर्डर, जी डिस्फोरिक डिसऑर्डर जैस। वो डिफरेंशियल में आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है। सिवियर इमोशनल सिम्टम्स समथिंग लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, सारा कुछ इसमें आता है। जी। या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। जी सर ये मेंटल डिसऑर्डर में आता है बिल्कुल। दूसरा आपने मुझे डिफरेंशियल में कहा था एंडोमेट्रोसिस, एपिलेप्सी और क्रॉनिक पेल्विक पेन। एपिलेप्सी नहीं कहा था, क्रोनिक पेलिक पेन, एंडोमेट्रियोसिस कहा था और पीएमएस कहा था। और कोई और ऐसी डिप्रेशन या एंजाइटी का कुछ हो। एंडोमेट्रोसिस की पेन कैसी होती है बेटा? सर एंडोमेट्रियोसिस की पेन्स वर्स विद द पीरियड्स होती है। और पीएमएस की होती है कि पीरियड्स के साथ खत्म हो जाती है। ये आप डीडी में मुझे आप बता रहे हो ना, तो जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी उसमें हाउ कम एंडोमेट्रोसिस और क्रॉनिक पेल्विक पेन आपने किस तरह डाला? जो मैंने अभी इतने सारे कहे उनके अलावा आपने हाउ वुड द पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड एंडोमेट्रोसिस, वो डीडी में कैसे आ गया? अब इसमें बेटा जी। देखो, जो हमारी ये सारी वैल्यूएशन थी, अब टू बी ऑनेस्ट जो की के अंदर दिया गया है डायग्नोसिस, तो चलो आपने पीएमएस का हमने कर दिया, उसके सिम्टम्स भी आपने काइंडली कोई बहुत ज़्यादा नहीं बताया, डीडी आपकी ठीक नहीं थी, इन्वेस्टिगेशंस आपकी ठीक नहीं थी, और मैनेजमेंट के अंदर जो सिर्फ आपकी एक डायरी के अलावा सॉरी जो था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उस पर आपने कोई बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया। उसके अलावा डाइट्री के लिए आपने ये नहीं कुछ बताया कि लेस्पोज ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली अगर कैफ़ीन, अल्कोहल, शुगर की इंटेक ज़्यादा होती है तो उसको हमने कम करना है। तीसरा, आपने सॉरी की हिस्ट्री में अगर उसने लिखा हुआ था ऑफ द काउंटर उसने दवाइयाँ ली हैं, उसने कौन सी दवाइयाँ ली थी वो नहीं आपने पूछा। और क्या उसने तो वैसे ही कह दिया था कि जो मल्टीवाइटामिन्स ली थी वो नहीं थी। फिर उसके बाद आके मेडिसिन आ जाता है।
और मेडिसिन के अंदर भी जो SSRIs हम देते हैं एज अ सेकेंड लाइन, उसके अंदर भी उसको देने के दो तरीके होते हैं। एक तो नंबर वन तरीका ये है कि ऐसा आप पूरे मंथ में देते रहो। दूसरा उसका तरीका ये होता है कि आपने सिर्फ जो उसकी सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर आपने उसको वो 14 डेज के लिए सिर्फ आपने देने, डजंट हैव टू बी कंटिन्यूसली। वो ना करें तो उसके साथ फिर हम, अगर इफेक्टिव ना हो नेक्स्ट टू टू साइकिल और 3 साइकिल्स में, फिर हम उसमें ये COCs ऐड कर देते हैं। एंड अगर उसके बाद भी ना हो रहा हो तो फिर ऑफ कोर्स वो साइकेट्रिक एवेल्युएशन एंड उसकी हेल्प और GnRH उसमें आ जाता है, विद दैट बैक थेरेपी दी जा सकती है। ठीक। उसके अलावा फिर हमने जो आपका लास्ट सवाल था जो आई थिंक आपको समझ ही नहीं आया, वो ये था, हाउ वुड यू काउंसल दिस पेशेंट रिगार्डिंग हर प्रोग्नोसिस एंड फॉलो अप। उसमें इसको समझाने वाली बात, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा? आई थिंक यू डिड नॉट गेट द अपना इसकी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज हाउ वुड यू काउंसल दिस पेशेंट रिगार्डिंग हर प्रोग्नोसिस एंड फॉलो अप। अम, जी सर, इसमें ये बताएंगे कि आपका जो ट्रीटमेंट के बाद इसका क्या मतलब, इसकी क्या आया, ये सही हो सकता है क्या है, उसको हम फॉलोअप कैसे करेंगे, ऐसे बेटा ही है। ऐसे ही है, लेकिन इसमें बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने पहले रीश्योर करना है कि आपका डायग्नोसिस इज PMS विच इज़ मैनेजेबल हम्म। with all these lifestyle modification और therapies, जिसमें हमारा ट्रायल हम्म। पीरियड होगा, जिसके लिए हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा पहले 3 मंथ्स के लिए। फिर अगर उससे ठीक नहीं होता तो फिर हम आपको मेडिसिन दे देंगे, और उसकी भी हम 2-2 दिन साइकिल देखेंगे, उसमें बीच में करके आके दे देंगे। और फिर आपने इसी सारे सिनारियो के अंदर उसकी हिस्टेक्टमी भी कर दी एट द एज ऑफ 32, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जी कि उसके नहीं पहले सर, बच्चे मैंने को नहीं, यहाँ पे मैंने खाए। आपको मैंने बोला कि फर्टिलिटी, मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शन सब बताया उसको, पेशेंट को सब बताने तो सब है ना, नहीं लेकिन सर, उसकी। जी पेशेंट को जी। बेटा एट द एज ऑफ 32 विदाउट आस्किंग कि जी कि वो मैरिड है अनमैरिड है, बच्चे हैं कि नहीं है, आगे उसने शादी करनी है नहीं करनी, यू फाइनली जम्प्ड अप टू कि जी हम तो उसकी स्टेक्टमी कर देंगे, दैट इज नॉट, आई थिंक डोंट थिंक सो कि दैट्स द राइट वे। नहीं नहीं सर, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम सारी उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, फर्टिलिटी विशेष पूछेंगे, और ना फिर सिर्फ आपने ऑप्शन बता रही हूँ नहीं मैं। नहीं, दिस इज नॉट एन ऑप्शन एट दिस केस। ओके। दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट एट दिस स्टेज। हाँ, ये अगर 40 years ऑफ एज होती, फैमिली इसकी कंप्लीट होती, दैट माइट बी एन ऑप्शन। यस, बिल्कुल। पर आप पहले ही उसे कह दो कि जी कुछ नहीं होगा तो हम आपकी स्टेक्टमी कर देंगे, उसने तो वैसे ही और डिप्रेशन में जाके चले जाना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड ये प्रैक्टिकली ओके सर। भी जो पेशेंट आपके पास पहली दफ़ा इस तरह PMS का आता है, आप ये नहीं कह सकते उससे कि जी आप पहले स्टेक्टमी करा लो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि सारे उसके सिम्टम्स हमने क्या क्या ट्राई करना है, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे। हाँ, ये रीश्योर ज़रूर करोगे आप उसको कि ये मैनेजेबल है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन इट में टेक्स अ वाइल विच कुड बी 3 to 6 months टाइम, तब तक हम उसको रीवैल्यूएट करके फिर हम देख के फिर देन अकॉर्डिंगली डिसाइड कि हमने क्या करना। ठीक है सर। अब मुझे आप बताओ आपका ये स्टेशन कैसा हो? सर फिर तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं हुआ। और एग्ज़ाम के सर अंदर पढ़ा। मैं सीरियसली आपको बताऊं, एग्ज़ाम के अंदर आप अगर खुदा न खास्ता फेल हो जाते हो और आपको पता ना हो कि जी कि आप फेल क्यों हुए हो, अगली दफ़ा आपका पास होने का चांसेस उससे भी कम हो जाता। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आजकल का तो आपका एग्ज़ाम बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया है कि जिसमें एग्जामिनर तो अपने, इसमें से मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, या मैंने कोई ऐसी अपना ऐड ऑन कोई चीज़ नहीं की कि जिसमें मैं आपसे पूछूं। इसमें तो जो जो मुझे लिखा हुआ था उसका पूछा है, और जो इसकी की के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि यू वुड हैव स्कोर्ड मोर देन 3 or 4 मैक्सिमम नंबर जो होते हैं जिसमें आप इस स्टेशन में पास नहीं होते, क्योंकि इसमें आपकी शुरू से ही ना इन्वेस्टिगेशन ठीक थी, ना आपका डिफरेंशियल ठीक था, ना आपका आगे उसकी मैनेजमेंट की डोजेज ठीक थी,
और एंड में ना आपका उसका प्रोग्नोसिस का बताने का शुरू था। आफ्टर 7 क्वेश्चंस तो आपके 4-5 सवाल तो इसी तरह आपके पहला आपका आंसर ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद देन वी लॉस्ट अवे। कुछ और आप पूछना चाहते हैं या मुझे बताओ? सर प्रोग्नोसिस क्या बताया आपने? प्रोग्नोसिस बेटा ऐसे मरीज के लिए आपने यही बताना है कि जी हाँ, उसको रीश्योर करना है कि ये मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है, पर उसके टाइम लगेगा हमें, तकरीबन 3 to 6 months टाइम, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता आपको एवेलुएट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स हम उसको रेक्टिफाई या उसको मैनेज करेंगे। ये कोई ऐसी खाना खासा डिजीज़ नहीं है कि जो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग और सारी उम्र आपको इसके साथ रहेगी। सर जब पेशेंट आता है तो हम उसको लाइफस्टाइल जी मॉडिफिकेशन बताते हैं और उसको मिनरल डायरी उसको देते हैं कि वो फिल करे। यही हम उसको करेंगे स्टार्ट बेटा, में। नहीं आप, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन, पहले तो आप उसको एवेल्युएट करोगे कि आपसे पहले वो जो जो जहाँ से होके आया उसने क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान उसका ले चुकी है। उसके बाद ही देन विल स्टार्ट ऑफ कीजिए हमने अगला स्टेप क्या लेना। हाँ, पहली दफ़ा अगर वो आया है और सिम्टम्स उसके बहुत सवेर नहीं है, ये इस तरह आके आके सिम्टम करते हैं और आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस पीएमएस है, तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर आप किसी डायरी और सारा कुछ करेंगे। ओके सर। सर देखिए, आपने इन्वेस्टिगेशन का बोला। अगर मैं जी, इससे फॉर एग्जांपल अगर ये रोल प्लेयर होती, मैं उसके सारे सिम्टम्स पूछती, थायराइड के, प्रोलैक्टिन के, जैसे मैंने कोई निपल डिस्चार्ज तो नहीं है, सब चीजें, फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन कराते। अगर ज़रूरत होती है आपको, आपका ख्याल था कि ये आपका डायग्नोसिस में यू नॉट वेरी श्योर, इसके तो बड़े बड़े टिपिकल सिम्टम्स आ गए ना, उसने खुद ही बता दिया कि जी मुझे इन डेज में होता है, फिर मैं ठीक हो तो जाती हूँ। सर तो इसीलिए तो मैंने आपसे नहीं इनकी नहीं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन फिर नहीं कराई। अगर ज़रूरत है तो उसको वैलिडेट करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेसिक टेस्ट जो हैं वो हमें करा लेने चाहिए। ये आपकी उसमें है प्रॉब्ली गाइडलाइंस के अंदर क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किए हैं। क्योंकि आपने तो बिल्कुल सिनेरियो ऐसा दिया था कि जैसे 6 मंथ से उसको सिम्टम्स हैं और पीरियड से पहले स्टार्ट होते हैं मूड स्विंग्स, तो फिर मैंने इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई ना। नहीं, आपने तो सोचा भी नहीं ना कि इसको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं सर, सोचा मैंने, बिल्कुल मुझे सोचना है। आपने थायराइड, प्रोलैक्टिन, क्योंकि मुझे निपल डिस्चार्ज, जैसे ब्रेस्ट का मुझे था, टेंडरनेस, तो और हेडेक। ये सारों के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन का सवाल आता है तो ये दीज टेस्ट कैन बी डन, प्रोवाइडेड दो चीज़ें हैं इसकी करने के लिए, या तो आप एम्पेरिकली कर सकते हो या उसके अगर पेशेंट को सिम्टम्स होंगे तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने से हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, बाकी ट्रीटमेंट्स करके वो आई है और ठीक, फिर भी ज़रूरत है, तो फिर देन ऑल दिस टेस्ट कैन बी डन। सर ये थायराइड डिसऑर्डर साइक्लिकल सिम्टम्स कैसे करेंगे? नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट साइक्लिकल सिम्टम्स, ये थायराइड डिजीज़ के अंदर बेटा ये सारी सिम्टम्स भी पेशेंट को हो सकते हैं, जो जो आपकी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एंजाइटी और उसके साथ है, इरिटेबिलिटी है, ये है, मूड स्विंग्स हैं, दे ऑल कैन बी ना, ये हाइपोथायराइड और हाइपर दोनों के अंदर कैन कॉज सिम्टम्स। सर लेकिन एक सर मैंने गाइडलाइन में कंटिन्यूअस पढ़ा था। जी, सर साइक्लिक नहीं होंगे, कंटिन्यूअस होंगे उनमें, थायराइड में और हाइपर में। उन्हें इसी तरह चाहिए, लेकिन कई बार इसके साथ मिलके वो एक्टिवेट हो जाते हैं, अच्छा अच्छा। बाकी मंथ वो ठीक रहती है, तब ये होते हैं तो जैसे फिर हार्मोन्स डिप्रेशन आते होगा हैं तो वो फिर भी एग्रावेट हो जाएगा। इसको, यस यस, यस सर। पहले एक सर्टेन लेवल पे लो लाइन चल रहा होता है, लेकिन इसमें आके ज़्यादा एक्टिवेट हो सर जाता गाइडलाइन में एक लिखा था, वेरिएंट पीएमडी लाइक प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, 4 है। जी कैटेगरी सब टाइप्स हैं, ठीक है ना। जिसमें जी सबसे पहले थी प्री मेंस्ट्रुअल एक्सरवेशन ऑफ द अंडरलाइंग डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, अस्थमा और माइग्रेन था। These जी patients will experience symptoms relevant to their disorder throughout the menstrual cycle. तो आपने मुझे बोला था कि एपिलेप्सी कैसे होगा ना, तो सर मैं जी पूछूंगी। सर मैं पूछ रही हूँ, मतलब मैंने से बोल तो दिया था, मैंने जी, पढ़ा था, लेकिन अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि कैसे होगा। एपिलेप्सी कैसे होगी? हाँ ना सर, इसमें ये लिखा हुआ था ना, लाइन है कि। देखो बेटा, उसमें बात ये है, जी सर। एपिलेप्सी को हमेशा क्या चीज़ ट्रिगर क्या करती है? स्ट्रेस। एनी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, जी डिप्रेशन,
जी वो जी, चीज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सारा कुछ कर देती है। और आपके जो इसके पीएमएस के सिम्टम्स हैं ये उन स्पेसिफिक डेज के अंदर ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें फिर चांसेस ऑफ हैविंग हर एनी काइंड ऑफ फेट, हम्म, वो चार चीज़ें उसकी वजह से बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो ये ऑल सर इंटर रिलेटेड है ना, सर कि मतलब आपकी ये जब जो जब बंदे डिसऑर्डर का है, सॉरी जब बंदे का किसी पेशेंट का भी या किसी का भी कोई मूड ऑफ होता है या नाराज होता है तो उसको हर चीज़ बुरी लगनी शुरू हो जाती है। तो उस जब वो हम्म हर चीज़ हो जाती है उसमें उसकी लेट्स सपोज के अगर कोई चीज़ भी ट्रिगर कर सकती है, विच कुड बी स्लीप डेप्रिवेशन, विच कुड बी एनीथिंग लाइट और आज जिसको हम कहते हैं, वो कोई चीज़ भी ट्रिगर कर सकती माइग्रेन। सर इसमें हेडेक और लेग क्रैम्प्स, बैक पेन है। फिर और देखो ना इसके अगर आप मैंने इसकी लिस्ट निकाली थी ऑफ पीएमएस के सिम्टम्स, उसने बहुत आता है 1 वीक लिस्ट के बिफोर अंदर पीरियड। कोई 100 चीज़ें लिखी हुई हैं। यस सर, ऐसा ही है। कोई सौ हेडेक चीज़ें कॉमन है इसमें, मतलब लेग यू पेन, बैक नेम इट पेन। एनीथिंग। उन्होंने लेग क्रैम्प से लेके मतलब है कि पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ था, नॉलेज लेकिन है, बहुत पेन, सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल। इसलिए ये एंजाइटी। हाँ, तो उस सारे को आपने अब कंसाइज करके किस तरह फोकस करके उस पर लेके ये 10 मिनट में पूरा करना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ों को हाँ। करते हुए। तो सर इसमें हम कॉमन सिम्टम्स देखेंगे जो अक्सर पेशेंट्स को होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो हम लिस्ट तो हम पूरी नहीं बता अ, सकते सर। सर नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम सर। एक क्वेश्चन था, जैसे कि गाइडलाइन में ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड द लास्ट रिसोर्ट इज दैट। सर इसमें एज ऑफ पेशेंट 32 इयर्स है। जो हमारे पास ओपीडी में पेशेंट ज्यादातर आती हैं, यंग पेशेंट होती हैं, गर्ल्स होती हैं, अनमेरिड, और उनमें 18 ईयर 19 20 इयर्स तक होता है। तो उसमें हम उनको कहते हैं कि ये विथ टाइम जो है इनका सेटल हो जाएगा। तो उनमें ऐसी कोई भी डिजीज तो नहीं होती, मतलब कि ना ही वो होता है, लेकिन ये है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही एंड होती है तो उनका वो पीएमएस खत्म हो जाता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। लेकिन 32 इयर्स में हम इससे क्या पहले की हिस्ट्री पूछेंगे कि इतने साल तक उसने कैसे आई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे रही थी तुम्हारी, या मतलब उसकी पैरिटी, या उसको कुछ ऐसा कुछ क्रॉनिक इलनेस डिजीज वगैरह। देखो बेटा, ये अगर आपका सेंटर कोई सॉरी स्टेशन है जिसमें उन्होंने आपसे इसका डायग्नोसिस कराना है या हिस्ट्री करानी है, फिर तो आप पूछोगे। ये ठीक है। स्टेशन जो था इसमें तो ऑलरेडी उन्होंने सारा कुछ आपको कंसाइज करके फोकस कर दिया। इसमें आपने उसकी हिस्ट्री टेकिंग में नहीं जाना था। उसको आपको उन्होंने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब। जी हाँ जी उसने जी जो आपको जी। इन्फॉर्मेशन दे दी है आप उसी के अंदर 10 मिनट में वही पूरा कर सकते हो। क्योंकि दिस स्टेशन वाज मोर फोकस्ड ऑन फर्स्ट मेकिंग अ डायग्नोसिस, देन रूलिंग आउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एंड देन थर्ड वाज कि इसकी मैनेजमेंट प्लान और प्रोग्नोसिस के बारे में आपने उससे बात करनी थी। 10 मिनट में आपसे यही हो सकता जी सर। सर जैसे कि आपने है। मैनेजमेंट में अगर बताया कि सॉरी हाँ, हेल्दी अगर लाइफ कोई स्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, जैसे एक्सरसाइज लिखा हुआ है, योगा है, डाइट है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी देनी है पेशेंट को, यस, ये आप इस तरह से होगा। ये जो आपने 3-4 चीजें बताई ये आपने इसी तरह बतानी है, उनकी डिटेल में जी ज्यादा सर। जाने की नहीं है। थैंक यू सर। यू हैव टू बी फोकस्ड। देखो आपको एक उन्होंने बना के सिनारियो आपको प्लेट में दे दिया कि हाँ जी अब ये अब जी आगे क्या करना थैंक यू सर। थैंक यू। है। ठीक। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ वुड यू से दैट इट इज द प्री मेच्योर सिंड्रोम। सर इसमें तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो सब कुछ आ रहा है कि ये प्री मेच्योर सिंड्रोम है, तो इसमें तो हम जीएनएचआरएस एनालॉग दे के नहीं देखेंगे ना। नहीं, फर्स्ट GNRH एनालॉग्स आर नॉट द फर्स्ट चॉइस टू बी गिवन टू अ पेशेंट कि जिसमें आप उसको डायग्नोसिस के लिए या मैनेजमेंट के लिए करो, तो दैट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। हाँ, अगर आपकी जो पहले पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन आपकी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरी में आपकी एसएसआई आती हैं, तीसरे में आपकी वो उसके अंदर उसके साथ ओसीपी ऐड हो जाती हैं, सीओसी सॉरी, एंड अगर वो भी फेल हो जाएं तो फिर हम आगे उस पर बात करते हैं ऑफ गोइंग इनटू दिस GnRH एनालॉग्स। डेनाजोल आई डोंट नो, पहले भी मैंने तो आज तक वैसे दी नहीं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हैं
दैट इज नॉट द चॉइस ऑफ ड्रग विच में हम इसमें कहेंगे। डॉक्टर साहब मैंने कहा था, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि अब उन्होंने उसकी लिस्ट में डाला हुआ। जी सर, चार्ट्स में तो नहीं डाला हुआ, लेकिन ना अंदर से मैंने गाइडलाइन पढ़ी थी, तो उसमें बताया था कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर दिस इज वुमेन नॉट गेट रिकमेंडेड प्रेग्नेंट। ड्रग। हाँ, जी, दिस इज नॉट द ओके रिकमेंडेड ड्रग। ओके। दिस इज नॉट द रिकमेंडेड ड्रग। उसी जस्ट तरह वो जिस तरह हम्म, THBSO आई वुड नॉट बी रिकमेंडेड कि हम इसमें बोलेंगे फिलहाल। सही है। हाँ, THBSO आप तब बोल सकते हो कि मरीज आके कहता है जी मैं तो पागल हो गई हूँ और ये हो गया फलां हो गया, मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सारी डिप्रेस ये होगी, उस पे भी चले गए, देन मे बी दैट इज अ चांस कि जिसमें के अंदर आप उसकी बात कर सकते सर एक सवाल था। सर देखिए, स्ट्रक्चर डिस्कशन में मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि स्ट्रक्चर डिस्कशन में अब आपने कहा कि 32 इयर्स है, मेरे जहन में था कि इसको हिस्टेक्टमी नहीं बोलना, लेकिन लिस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट भी नहीं बताएंगे कि भाई ये चीजें हैं। नहीं और बेटा, भाई देखो ना, स्ट्रक्चर डिस्कशन है विद अ सिनेरियो। ये स्ट्रक्चर सर मुझे डिस्कशन कुछ आपके पता चैप्टर की ये नहीं है, आपने जी उसको जिन सामने रख के करना है ना। मैं इसी सर मैं सिनारियो को उससे नहीं बेटा, मैं इसी सिनारियो को कहता जी शी इज पैरा 2 और पैरा 4, her हम्म, family is complete and she is ओके 40 years of age, ठीक है, ठीक सही, सही है, ठीक है। फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाता। ठीक है सर, लेकिन उसमें भी PMS के अंदर आप सीधी उसकी स्टेटमी नहीं करोगे, उसकी नहीं क्वालिटी करेंगे ऑफ लाइफ को हम थोड़ा सा असेस लाइफ को करेंगे, और जी बाकी सारी चीज़ें करने के बाद अगर नहीं होती तो मे बी ये वाले जो मरीज है, लेट्स सपोज मैं अगर अपनी बात करूं, ये 32 हम्म वाली आके हमने साल कोशिश करके सारी ड्रग्स करके देख ली और उसके सिम्टम्स नहीं बेहतर हो रहे और वो फिर भी शी इज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, फिर देर इज अ चांस कि जी वो कर दे। लेकिन डू रिमेंबर दिस कि आफ्टर डूइंग THPSO पेशेंट वैसे भी डिप्रेशन में और चले जाते हैं। कई जी बार वो अगर ये बीमारी उसकी नहीं है और इसी में इसकी अगर हमने किसी बिहेवियर साइंस से या साइकेट्रिस्ट से उसकी वैल्यूएशन भी करा के फिर देन विल डिसाइड ऑन द THPSO। हाँ, यही मरीज 40-45 की आ जाती है और ये सारे सिम्टम्स हैं, देन ऑफ कोर्स हम तीसरे चौथे महीने भी हम डिसीजन ले सकते हैं कि अच्छा जी फिर आप ये करा लें। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द सिनेरियो विच इज, आपने चैप्टर नहीं खोल लेना कि PMS का जी उसमें सारा कुछ ही लिखा हुआ है, उसकी जो ये 100 उसकी लिखी हुई है सिम्टम्स, पहले सारे उसको वैल्यूएट करेंगे और फिर हम आगे उसको लेके चलेंगे। सर एक बार डिफरेंशियल्स दोबारा बता देंगे? डिफरेंशियल्स इसमें ठहर जाओ बेटा, मैं ओपन है आप जो की के अंदर मुझे इसके डिफरेंशियल दिए हैं, उसमें प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स PMDD, जी जी सीवियर इमोशनल सिम्टम्स, ये तो सिम्टम्स हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, और उसने एक दिया हुआ है रिक्वायर्स DSM-5 क्राइटेरिया। ये उसकी है क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन को, वो उसमें मार्क करता है नंबर्स के हिसाब से। उसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा थायराइड फंक्शन, उसने कहा था थायराइड के हाइपर और हाइपर सिम्टम्स हो सकते हैं, और ये प्रोलेक्टिन के हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, और बेसिकली पेरीमेनोपॉज, सही ठीक है। they all can cause all this symptoms। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे पूछना था, आपने बताया कि हम सॉरी SSRI देंगे। किसी का माइक खुला हुआ है, बाकी म्यूट कर दो। हाँ जी, अस्सलाम जी आप वालेकुम। सर आपने कहा था कि हम SSRI हम देंगे 1 मंथ के लिए, और अगर इफेक्टिव सिम्टम नहीं हुए हम इवेल्युएट भी करते रहेंगे, और उसके बाद 2 to 3 साइकिल हम OCP 8 करेंगे 2 साइकिल्स के लिए, और देन हम फिर उसको साइकेट्रिक थेरेपी भी देंगे, और फिर हम GNRH का ऑप्शन देंगे। सर जी ऐसे ही होगा ना ट्रीटमेंट में? यस, लेकिन जरूरी नहीं है कि SSRI जनरली हम 3 मंथ्स तक दे सकते हैं टू सी हर सिम्टम्स इफ दे आर इम्प्रूविंग, क्योंकि उसके ओके ब्लड लेवल्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक्स अबाउट अ ओके, मंथ। थैंक यू सर। सर हम फर्स्ट लाइन किस में देंगे और सेकंड लाइन किस में देंगे? कोई बेटा फर्स्ट लाइन तो आपके मूड के चेंजेस है ना,
सॉरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें सिगरेट है, अल्कोहल है, जिसमें आपके उसका वेट का भी, अगर वेट है तो थोड़ा सा वो सॉल्ट का सर भी कहते हैं। सीओसी भी है, सीओसीपी भी सीओसी फर्स्ट फर्स्ट लाइन लाइन में में। नहीं आती बेटा, सीओसी सीओसी सर सेकंड लाइन में तो वो सेकंड। इस्ट्राडायोल पेच और मारीना है ना, इस्ट्राडायोल पेच और सेकंड लाइन मारीना, में मारीना मैंने इसमें पढ़ी नहीं है वैसे बेटा, कि इस्ट्राडायोल मारीना, पेच, हाँ पेच फॉर्म में। पैचेस हो सकते हैं बट नॉट द मारीना, मतलब मैंने पढ़ी नहीं, अगर आप लोगों ने पढ़ा तो मुझे उसका नहीं पता अभी तक। अच्छा सर, थैंक यू। ओके, सर मैरीना का रोल नहीं है इसमें पीएमएस में। मेरा नहीं ख्याल है हाँ, ये ड्यूअर्स में लिखा हुआ है उसमें। सर लेकिन रोल नहीं है, इस्ट्राडायोल पेच देंगे जब हम तो हाँ, काउंटर एस्ट्राडायल इफेक्ट के पेज लिए। है। बेटा एनीथिंग जिसने ओवुलेशन को सप्रेस करना है ना, इट वर्क्स विद दिस पीएमएस, ये याद रखो। ये जो हम सारी सीओसीज जो दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, तो ये ओवुलेशन को जो सप्रेस कर जाती है चीज़, वो ही इसमें इफेक्टिव होती है। जीन राज का मसला ये है कि जीन आर आप कितनी लंबा लगा के दे सकते हो, ये तो नहीं 3 मंथ 6 मंथ्स के बाद उसके अपने ही कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 6 मंथ्स के सर वो बाद फिर हम प्रेगनेंसी भी सर वो प्रेगनेंसी भी कंसीव करना चाह रही है और ये पीएमएस भी है, तो फिर इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? फिर देन यू वेट दोनों को आउट, यू टेल द पेशेंट की जी कि जो अगर आपके सिम्टम्स, क्योंकि जाहिर है विद दिस SSRI के साथ तो वो कंसीव कर सकती है, फिर दैट इज़ द चॉइस, और बाकी मूड्स हैं। लेकिन अगर उसने आगे उसके फर्टिलिटी का कंसर्न्स है, फिर आप उसको COC और ये नहीं करोगे। हाँ, ये आप ये ज़रूर से कर दोगे कि जी अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो फिर जाहिर है फिर आपके सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन प्रेगनेंसी कब होती है, किस तरह होती है, फिर उसके पर हमने देन वी हैव टू वर्क ऑन इट। फिर मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि बाकी अगर उसका फर्टिलिटी का वर्कअप कंप्लीट है तो वी कैन वर्क ऑन द IUI, ताकि जितनी जल्दी प्रेग्नेंट होगी उसके सिम्टम्स खत्म हो जाए। और सर वो प्रेग्नेंट होगी तो हम एसएसआर बंद कर देंगे ना? जरूरी तो वो नहीं है बेटा कंटिन्यू करेंगे। वो बेटा उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है, हम्म, उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। अगर तो वो शी इज़ फाइन तो उसको आहिस्ता आहिस्ता बंद कर सकते हो, लेकिन अगर उसको बंद करते हो और उसको दोबारा डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं तो यू कैन इवन कंटिन्यू दैट। वो फिर आपने थैंक साथ इन्वॉल्व, वो अपने साथ में इन्वॉल्व करोगे साथ बिहेवियर साइंसेस के डॉक्टर को भी। ठीक है, यू सर। ओके बेटा। इमरान आना है, डॉक्टर शहनाज ने आज? सर जी इसको सर। इंडोसफेनॉल क्यों करते हैं, सर मतलब नेक्स्ट टॉपिक COPD बताएंगे प्लीज। से? बेटा नेक्स्ट टॉपिक तो मुझे भी नहीं पता होता, ये तो सर इमरान। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, IUGR करवा दें हमें नेक्स्ट वीक, सर मैं प्रेजेंट करूंगी। चलें, ये आप उसको इमरान को रिक्वेस्ट सर कर दो। सर आईयूजीआर लास्ट का टाइम मैंने स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट की थी डिस्कशन लेकिन आया उन्होंने था। PMS रख दिया था सर, FCPS के लिए तो हमारा IUGR का ज्यादा वो है ना इसका। हाँ सही कह रही हैं सर, आईयूजीआर आया भी था एग्जाम में, स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। सर हर दफा आता है IUGR। अच्छा ठीक, इमरान। सर 2 वॉलंटियर रखे ना आप, सर एक रख रहे हैं, हम भी दो प्रेजेंट करना था। मैं तो कहता हूँ 2 सारे पेशेंट। वॉलंटियर रखे, 10 सर 10 तीन मिनट्स रखे के। हैं सर, 10-10 मिनट्स 2 की तीन सही। सिनेरियोज बनाए सर। बेटा उसमें नहीं, दो उसमें ना फिर हमारी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं, इसमें फोकस होके कंप्लीट हो जाए तो इट वर्क्स बेटर, मेरा अपना अंदाज़ा यही है। जी सर, ये भी है। हाँ, वरना वो ना उसमें हमारी चीज़ें फिर कंप्लीट नहीं होती हैं 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट्स के अंदर। इसलिए मैं तो डॉक्टर आशीष रखते हैं 2 3, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये एक ही से कंप्लीट पूरा हो जाए सर्कल तो दैट इज़ मच बेटर, और बाद में आप क्वेश्चन आंसर्स तो खैर किसी से भी बीच में हो सकते सर जैसे आप पूछ रहे हैं ना, ऐसे एग्जाम में इस तरह से ही होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर डिस्कशन में था कि मतलब डीडी क्या है, ये क्या है, 5-6 क्वेश्चन थे, इस तरह से ही होता है। हैं। तो हम उसी को देख के तो हमने ये बनाया है हाँ सर। जी सर, हम सिनेरियो को नहीं देखते, इस वजह से तो फेल हो रहे हैं। यस, और वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पहले जो 1 मिनट आपको मिलता है उसको तसल्ली से बड़ा ज़रा उसको बैठ के इसको ऑर्गेनाइज अपने जहन में करो, फिर उसके बाद आगे आप चलो। आप लोग बैठते साथ ही शुरू हो जाते हो कि चैप्टर इस चीज़ का इनफर्टिलिटी का है तो पूरा चैप्टर सुनाना है, PMS का है हाँ तो सर। पूरा खोल के सुना देना, दैट इज़ रॉन्ग। उससे फिर आपको नंबर आपके कट जाते हैं, फिर बाहर आके आप कहते हो जी मैंने तो सारा कुछ बताया था, वो एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही।
चलो बेटा, थैंक यू ओके मैम, थैंक यू सर। वेलकम।